Hello everyone. Welcome to the daily, let's say week में 3 बार, but yeah, welcome to the static lecture series which we do on every Monday, Wednesday and Friday to make sure that you are acing your CUET 26 and 27. If you're following this series, I'm promising you, it's a promise from my side, no question in your static GK part 3 of CUET goes out, right? You'll be able to solve around 95% of your questions without linking into any other material or any other classes per se. But in case you are looking to prepare, or let's say a full-fledged course wherein you are catered with paper 1, your language paper, your domain sections, whether be it science, humanities or commerce, and then a comprehensive preparation of your paper 3, which would include your quantitative aptitude, reasoning, and then some portions of GK, can avail to our courses. If you want to just prepare GK, I'm promising you these lectures are more than sufficient. Chalo, without wasting any time, let us also look into it. We get top faculties, we get access to our domain subjects, whatever subjects you have, then also your PYQ question bank, one-on-one mentorship, and then not to forget your Saraswati scholarship, which means if you have a perfect 100 percentile in whatever subject you choose, your whole fee would be refunded from level up, right? Chalo. The first question says the third Buddhist council was held during the reign of which ruler? Multiple times I have told you there were 4 Buddhist councils. The third was conducted by Ashoka at the city Patliputra, which is modern day Patna. Chalo. The answer for this is Ashoka, right? Remember this. Every second year you have a question coming out from here. नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज स्टैब्लिश ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच रूलर? देखो, सो नालंदा एक टाइम पे बहुत फेमस था. इट वॉज अ सेंटर, a lot of people from different parts of the world used to come here and study. So Nalanda University was built in during the Gupta period, and the ruler was Kumar Gupta. Kumar Gupta one, right? इस नालंदा यूनिवर्सिटी को बाद में जला दिया था किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने. अलाउद्दीन खिलजी. बाद में इसका रिस्टोरेशन चालू हुआ है. So people like Amartya Sen, APJ Abdul Kalam, all of these started working for restoring this Nalanda University. And in the year 2010, law was passed, an act was passed. Hence we can say Nalanda University right now is a statutory body. क्योंकि किसी कानून से बनी हुई बॉडी है, इसीलिए एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, राइट? द करंट वाइस चांसलर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी इज मिस्टर अरविंद पंगड़िया. हु इज अरविंद पंगड़िया? Arvind Pangadia ji is the chairman of the 16th Finance Commission. Very important finance commission हमने multiple times किया हुआ है. And also he was the first vice chairman of the Niti Aayog, which is the think tank of India. Niti Aayog. The Niti Aayog was replaced. Your planning commission was replaced by Niti Aayog in the year 2014, and the Prime Minister of India heads the Niti Aayog, and the vice chairperson was Arvind Pangadia. Very important. Chalo. So your answer would be Kumar Gupta 1. This is the ruins of your Nalanda University. See, Kautilya किसके टाइम पे थे? Kautilya was the advisor of Chandragupta Maurya, right? Advisor to Chandragupta Maurya, right? इनकी एक किताब थी अर्थशास्त्र, which though might look a book on economy, but it is not a book on economy, rather it is a book on statecraft, कि एक देश कैसे चलाते हैं, एक स्टेट कैसे चलाते हैं. जिसमें इन्होंने ये बात बोली थी कि इकोनॉमी, सॉरी पॉलिटी, जिसमें इन्होंने एक बात बोली थी, इकोनॉमी इज द मदर ऑफ पॉलिटी. मतलब अगर आपकी इकोनॉमी मजबूत होगी तो आप अपने आप, शासन आपका मजबूत होगा, आपकी पॉलिटी अपने आप मजबूत होगी. सो योर कौटिल्य वाज ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड, राइट? ही वाज द एडवाइजर टू चंद्रगुप्त मौर्य. So answer would be your Mauryan Empire. The Mauryan Empire, right? अच्छा, Mauryan Empire की कैपिटल थी राजगीर. राजगीर इज इन मगध. मगध, राइट? मगध, which is in modern day Bihar. Where did Buddha preach his first sermon? तो बुद्धा से रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चंस आते हैं. Where was Buddha born? The first question is where was Buddha born? So Buddha was born in लुम्बिनी. बर्थ कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी में. Where is लुम्बिनी? Modern day Nepal, right? Then he got enlightened. Where did he got enlightened? He got enlightened at बोध गया. बोध गया में एक पीपल ट्री के पास में, राइट? एनलाइटन होने के बाद उन्होंने सबसे पहले बिहार छोड़ा, और बिहार से वो सबसे पहले आए कहाँ पे? सारनाथ में. सारनाथ कहाँ है? आज का वाराणसी. वहाँ पे एक डियर पार्क है, वहाँ पे उन्होंने अपना पहला सरमन दिया, है ना? अपनी पहली रिलीजियस सरमन दी. कहाँ पे? सारनाथ में. इसके अलावा दिस इज इन वाराणसी. इसके बाद इनकी डेथ हो गई. डेथ होगी इनकी कुशीनगर में. कुशीनगर कहाँ है? यूपी में, राइट? की डेथ हो गई थी यूपी में.
So where did Buddha preach his first sermon? The first sermon by Buddha was preached at सारनाथ. सारनाथ मतलब आज का मॉडर्न डे वाराणसी. चलो. द बिगेस्ट हरप्पन साइट इन इंडिया इज, अभी अगर आपने मंडे वाला लेक्चर देखा होगा तो द बिगेस्ट हरप्पन साइट इज राखी गढ़ी. मैंने बताया हरियाणा में. धोलावीरा रिजर्वायर, लोथल इज अ डॉकयार्ड एंड कालीमंगन इज फेमस फॉर योर फ्लोट फील्ड. फॉर योर फ्लोट फील्ड. राखी गढ़ी द बिगेस्ट हरप्पन साइट. विच ब्रिटिश जनरल डिफीटेड टीपू सुल्तान इन द फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर. तो अभी क्या था, ब्रिटेन ब्रिटिशर्स केम इन इंडिया, धीरे धीरे उन्होंने बंगालीज हटाए है ना, फिर मैसूर हटाए, फिर अवध हटाए, हम मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हैं. बट अभी तो इस क्वेश्चन को याद करने के लिए आप याद रखो कि जो ये आपके टीपू सुल्तान थे, ही गॉट डेड इन द फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर somewhere in the year 1799, and Stuart was fighting on behalf of the Britishers. Stuart was fighting on behalf of the. Who among the following is considered as the founder of Rashtrakuta dynasty? देखो राष्ट्रकूताज एक सेंट्रल इंडिया की डायनेस्टी थी अराउंड 780 टू 980. ये महाराष्ट्र, कर्नाटका, मध्य प्रदेश वाले रीजन में मिलेगी. महाराष्ट्र, कर्नाटका और मध्य प्रदेश वाले रीजन में मिलेगी. दिस वॉज समवेयर अराउंड 650 AD टिल 750 AD, है ना. एंड दे वर कॉल्ड एज राष्ट्रकूताज. तो राष्ट्रकूताज के जो फाउंडर थे दैट वाज दंती दुर्ग. दंती दुर्ग. दंती दुर्ग वाज द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी राष्ट्रकूताज. क्वेश्चन पूछता रहता है राष्ट्रकूताज पे, थोड़ा सा पढ़ के जाएंगे. राइट. अच्छा, ये जो आपके राष्ट्रकूताज थे इसका कैपिटल था मान्याखेत. मान्याखेत कहाँ पे है ये? कर्नाटका में, मॉडर्न डे कर्नाटका में मान्याखेत. राइट. रिमेंबर ऑल ऑफ दीज फैक्ट्स. रिमेंबर दंती दुर्ग, रिमेंबर द लोकेशन, and remember that it was a Central Asian dynasty, and also remember their headquarter which is Manyakhet, which is in modern day Karnataka. चलो, see these were the Rashtrakutas. ये हो गया आपका Manyakhet. Who among the following Mughal ruler fought the Battle of Chausa? देखो Battle of Chausa was fought between, the Battle of Chausa was fought between Humayun, who was the son of Babur. It was fought between Humayun versus Sher Shah Suri. Right. Humayun versus Sher Shah Suri. Where is Chausa? So Chausa is a bordering district between बिहार एंड यूपी. आप यूपी से बिहार में एंटर करोगे आपको चौसा मिल जाएगा. सो दिस वाज अ वॉर फॉट बिटवीन हुमायूं एंड शेर शाह. हुमायूं एंड शेर शाह सूरी. ठीक. राइट. ये चौसा है आपका यूपी से निकलते ही बिहार में. विच रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत स्टार्टेड द सिस्टम ऑफ ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस. तो मैंने अभी आपको बताया अलाउद्दीन खिलजी जो थे, इन्होंने ही आपकी नालंदा यूनिवर्सिटी भी बंद कर दी थी जो कुमारगुप्त ने बनवाई थी. और अलाउद्दीन खिलजी ये जो कोर्ट पोएट थे उसका नाम था आमिर खुसरो. आमिर खुसरो. आमिर खुसरो इज ऑल्सो कॉल्ड एज द फादर ऑफ कव्वाली. तो ये जो कव्वाली आप सुनते हो इसके फादर कौन है? फादर ऑफ कव्वाली इज आमिर खुसरो. आमिर खुसरो वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ अलाउद्दीन खिलजी. कोर्ट पोएट ऑफ अलाउद्दीन खिलजी. एंड अलाउद्दीन खिलजी वॉज पार्ट ऑफ दिल्ली सल्तनत. तो ये क्या करता था? डॉग्स अपने सॉरी हॉर्सेस को ब्रांड करता था. हॉर्सेस की एक ब्रीड बनाता था कि ये प्रीमियम हॉर्सेज हैं, ये नॉर्मल हॉर्सेज हैं. राइट. समझ गए. दैट इज कॉल्ड एज दाग सिस्टम. दाग मतलब क्या होता है? निशान. दाग मतलब स्टैम्प. तो स्टैम्प लगा देता था हॉर्सेस पे, स्टैम्पिंग कर देता था. चलो. तो योर दाग सिस्टम, विच रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत स्टार्टेड द सिस्टम ऑफ ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस? द सिस्टम ऑफ ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस इज कॉल्ड एज दाग. एंड दिस दाग सिस्टम वाज स्टार्टेड बाय अलाउद्दीन खिलजी AK. चलो. आमिर खुसरो वाज हिज कोर्ट पोएट हु इज आल्सो कॉल्ड एज द फादर ऑफ कव्वाली. सब पूछता है आपसे, प्लीज रिमेंबर ऑल ऑफ दिस. चलो. आमिर खुसरो was a famous court poet of which king? So he was a famous court Alauddin Khilji. Which ruler of Delhi Sultanate began the scheme of giving loans to farmers for cultivation known as तकावी loans? तो देखो दिल्ली सल्तनत के एक किंग हुए who was called as मोहम्मद बिन तुगलक. Who was called as मोहम्मद बिन तुगलक. तो दिल्ली सल्तनत के किंग हुए मोहम्मद बिन तुगलक. और ये फेमस थे अपने तुगलकी फरमान्स के लिए. मतलब ये जो डिसीजंस लेते थे वर नॉट वेरी प्रूडेंट. राइट. तो ये कुछ इनफेमस हो गए इस वजह से. जैसे इनका कॉइन वाला इशू है, जब हम डिटेल में पढ़ते हैं, है ना, तो इनके जो ब्रॉन्ज कॉइन्स थे ये फेल हो गए थे. लोग नकली बनाना शुरू कर दिया था उन्होंने. दूसरा, ही शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दाइमाबाद. शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दाइमाबाद. दाइमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में. जस्ट बिकॉज ही लाइक द क्लाइमेट देयर. पता चला कि दिल्ली में एक्सटर्नल इन्वेजन हो रहे थे, वापस दिल्ली भाग के गए. राइट. इसके अलावा ही ऑल्सो ऑफर तकावी लोन्स. ये तो चलो अच्छी चीज़ थी. तकावी लोन्स इन्होंने इसलिए दिए थे क्योंकि दिल्ली में एक फैमिन आ गया था. दिल्ली में एक फैमाइन आ गया था. दिल्ली में क्या आ गया था? एक फैमाइन आ गया था. फैमाइन मतलब सूखा आ गया था. सूखा मतलब रेनफॉल नहीं थी. रेनफॉल नहीं थी, प्रोडक्शन नहीं था. प्रोडक्शन नहीं था तो बेच नहीं पाते थे. बेच नहीं पाते थे तो पॉवर्टी बढ़ रही थी. राइट. तो ही स्टार्टेड गिविंग तकावी लोन्स. रिमेंबर तकावी लोन्स आर रिलेटेड विद whom?
Takavi loans are related with your Muhammad bin Tughlaq. Muhammad bin Tughlaq, MB. चलो. Battle of Talikota was fought in which? Battle of Talikota. अच्छा, Battle of Talikota is also called as Battle of Rakshas Tangdi. Battle of राक्षसी तंगड़ी. ये जो बैटल ऑफ तालीकोटा थी, ये लड़ी थी विजयनगर एम्पायर ने, है ना. और ये विजयनगर एम्पायर की जो कैपिटल थी दैट वाज हम्पी. सो यू विल फाइंड विजयनगर एम्पायर इस वाले रीजन में, है ना. यहाँ से रिवर जाती है आपकी कृष्णा रिवर, और यहाँ से ये आपकी जा रही है कौन सी रिवर? कृष्णा रिवर. और ये जा रही है आपकी तुंगभद्रा रिवर. कौन सी रिवर? तुंगभद्रा. तुंगभद्रा. और ये जा रही है आपकी कृष्णा रिवर. वाटर मतलब पंजाब, मतलब 5 वाटर बॉडीज के बीच वाली बॉडी. ऐसी दो रिवर वाटर बॉडीज के बीच की जमीन. ये जमीन एक वाटर रिवर वाटर हो गया, एक वाटर बॉडी हो गई, ये एक वाटर बॉडी हो गई. ये वाले रीजन को बोलोगे आब. ये वाले रीजन को बोलोगे आब. ये दो वाटर बॉडी के बीच में ना, ये वाला भी बोल सकते हो आप. तो ये रीजन बहुत फर्टाइल होता है, राइट. तो ये जो विजयनगर एम्पायर था, इसका जो कैपिटल था हम्पी, दैट वाज सिचुएटेड ऑन तुंगभद्रा रिवर. विच रिवर? तुंगभद्रा रिवर, राइट. तो तुंगभद्रा रिवर, तुंगभद्रा रिवर याद रखो. विजयनगर एम्पायर याद रखो. दिस द बैटल ऑफ तालीकोटा हैपेंड इन 1565 याद रखो. इसकी हेडक्वार्टर कहाँ थी विजयनगर एम्पायर की? इट वाज इन हम्पी. हम्पी आज कर्नाटका में आपको मिलेगा, राइट. हम्पी कहाँ था? ये दोआब वाले रीजन में, कृष्णा एंड तुंगभद्रा वाले रीजन में. अच्छा, द मोस्ट पॉपुलर लीडर ऑफ विजयनगर एम्पायर वॉज कृष्णदेव राय. कृष्णदेव राय. इन्हीं से एसोसिएटेड आप पढ़ते हो तेनाली रमन. तेनाली रमन. चलो. With reference to Delhi Sultanate, which among the following architectural wonder is credited to Iltutmish? तो कुतुब मीनार, ऑब्वियसली वी हैव डन दिस क्वेश्चन. तो एक दो बार ही हम पहले भी कर चुके हैं, और इसमें मैंने आपको बताया था, है ना, बख्तियार काकी के बारे में भी. तो कुतुब मीनार शैल बी द राइट आंसर. रज़्मनामा इज द पर्शियन ट्रांसलेशन ऑफ विच हिंदू टेक्स्ट? देखो, जो आपके अकबर थे, अकबर यूज टू रूल फ्रॉम आगरा. आगरा के पास में एक सिटी है फतेहपुर सीकरी. फतेहपुर सीकरी में अकबर ने क्या किया था, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक इंस्टीट्यूशन बनाया था, जहाँ पे वो रिलीजियस टेक्स्ट को अलग अलग लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट कराते थे, सो दैट पीस एंड लव इंक्रीजेज बिटवीन डिफरेंट कम्युनिटीज़. तो उन्होंने महाभारत, रामायण, कुरान, उपनिषद, इनके भी ट्रांसलेशन कराए थे. जैसा उन्होंने महाभारत का भी ट्रांसलेशन कराया, और महाभारत का पर्शियन ट्रांसलेशन, महाभारत का जो पर्शियन ट्रांसलेशन था, इज कॉल्ड एज रज़्म नाम. रज़्म नाम. चलो, रिमेंबर इट इज द पर्शियन ट्रांसलेशन ऑफ महाभारत एंड ड्यूरिंग द रेंज ऑफ अकबर एट फतेहपुर सीकरी. फतेहपुर सीकरी, वेयर इज फतेहपुर सीकरी? फतेहपुर सीकरी इज अ प्लेस क्लोज प्लेस एसोसिएटेड नियर आगरा. चलो. हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ पूना सार्वजनिक सभा? देखो, पूना सार्वजनिक सभा के जो फाउंडर थे वो आपके थे एमजी रानडे. कौन थे? एमजी रानडे. एमजी रानडे वाज अ रिटायर्ड जस्टिस ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड. एमजी रानडे, ही वाज फ्रॉम महाराष्ट्र, बॉम्बे प्रेसिडेंसी. ही वाज अ रिटायर्ड जज, and right, and he was working for the upliftment of masses. Hence Pune Sarvajanik Sabha was made by MG Rana Day. MG Rana Day. Who among the following were associated with the Gadar party? तो देखो, इंडिया के इंडिपेंडेंस के लिए हम बाहर से भी प्रयास कर रहे थे. वी वर पुटिंग इन एफर्ट्स फ्रॉम आउटसाइड इंडिया आल्सो, सो अ लॉट ऑफ इंडियंस वर लिविंग इन यूएस. तो ये जो आपकी गदर पार्टी है 1913 में बनाई गई थी, लाला हरदयाल ने बनाई थी, और इसका हेडक्वार्टर था सैन फ्रांसिस्को में. सैन फ्रांसिस्को वेयर? यूएस में. So all of these, your Bakhna ji, your Taraknath Das and Lala Hardayal, all of these were members of the Gadar party. Hence, all of the above shall be the answer. Remember the headquarter, right? And in the year it was established. Chalo. Who among the following was also known as the Indian Burke? So Burke was a famous poet or a writer from Britain, right? Surendranath Banerjee. Surendranath Banerjee, who established the Indian National Association in the year 1876. This Indian National Association was ultimately culminated into Indian National Congress, which was established in the year 1885. So your Surendranath Banerjee was called as Indian Burke. Who among the following founded the Bharat Naujawan Sabha? So your Bhagat Singh ji. Your Bhagat Singh ji was a communist at heart, right? इनको फांसी हुई थी 23 मार्च 1931 को. भगत सिंह जी ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी का नाम चेंज करके किया था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी. और इनकी एक बहुत फेमस बुक है वाई एम आई एन अथीस्ट. वाई एम आई एन अथीस्ट. ऑल्सो
Bhagat Singh is someone who is revered both in India and Pakistan. Also, he established this organization called as Bharat Naujawan Sabha. भारत नौजवान सभा। फिर इन्होंने इंडिया की ये जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली थी, इसमें बॉम्बिंग्स भी की थी, साउंड बॉम्ब डाला था, है ना, विद बटुकेश्वर दत्त। चलो, दैट इज इट। सी व्हाई आई एम एन अथीस्ट। Which two persons took the role of Governor General of India as a representative of King George 6 from 1947 to 50? लेकिन 1947 तक तो हमारा वाइसरॉय कौन थे रहे? हमारे वाइसरॉय थे आपके योर दिस रैडक्लिफ कमीशन था, और लॉर्ड माउंट बैटन। लॉर्ड माउंट बैटन वॉज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ नेहरू जी ऑल्सो। तो माउंट बैटन कुछ टाइम तक रहे, फिर माउंट बैटन ने उनको बना दिया सी राजगोपालाचारी को, और अल्टीमेटली हम 26 जनवरी 1950 को क्या बन गए? रिपब्लिक बन गए। तो तब तक हमारे गवर्नर जनरल रहे थे सी राजगोपालाचारी। तो पहले इनिशियली रहा इंडिपेंडेंस के बाद लॉर्ड माउंट बैटन, एंड देन सी राजगोपालाचारी, राइट। द डैश मूवमेंट वॉज लेड बाय मोहम्मद अली एंड शौकत अली। तो ये हम सब पढ़ते हैं हिस्ट्री में। तो जो हमारा खिलाफत मूवमेंट था, है ना, तो खिलाफत मूवमेंट था विच वॉज कपल्ड विद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लेड बाय गांधी जी। सो खिलाफत मूवमेंट वॉज लेड बाय मोहम्मद अली एंड शौकत अली, राइट। खिलाफत मूवमेंट इसलिए था ताकि जो ब्रिटिशर्स वर्ल्ड वॉर 1 जीतने के बाद वहाँ से खलीफा की पोस्ट को अबॉलिश कर रहे थे टर्की से, उसको ना किया जाए। फॉर दैट इट देयर वाज दिस खिलाफत मूवमेंट बाय मोहम्मद अली एंड शौकत अली। चलो, दिस वॉज कपल्ड विद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लेड बाय गांधी, लेड बाय गांधी जी, लेड बाय गांधी। द रेवतवारी सेटलमेंट वॉज इंट्रोड्यूस बाय। अब देखो, जब ब्रिटिशर ने हम पे रूल करना शुरू किया, एग्रीकल्चर वॉज द प्राइमरी एक्टिविटी, राइट। तो अब एग्रीकल्चर से कैसे वसूलें, टैक्सेस कैसे वसूलें? तो 3 टाइप के सिस्टम्स आए। फर्स्ट वन वॉज योर परमानेंट सेटलमेंट एक्ट। थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे इसको कभी बाद में, पहले मैंने पढ़ाया हुआ है। इफ यू वाचिंग इट रेगुलरली फ्रॉम लेक्चर 1 तो आप ये समझ पाओगे। परमानेंट सेटलमेंट एक्ट वॉज लॉन्च बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस इन द ईयर 1793, पहला हो गया। सेकंड वॉज योर दिस महलवाड़ी सिस्टम, सॉरी, और रेवतवाड़ी सिस्टम। रेवत का मतलब होता है फार्मर, तो इसमें ना डायरेक्ट फार्मर से ही पैसा लेते थे, टैक्स लेते थे। इसमें देयर वाज अ जमींदार, तो जमींदार यूज टू कलेक्ट इट फ्रॉम फार्मर एंड देन अल्टीमेटली गिव इट टू द ब्रिटिशर्स। तो जमींदार देता था ब्रिटिश को, और फार्मर देता था जमींदार को। इसमें हम डायरेक्ट जमींदार फार्मर से ही लेते थे। फार्मर इज ऑल्सो कॉल्ड एज रेवत। रेवत का मतलब होता है फार्मर। अच्छा, दिस वॉज इन द बॉम्बे एंड मद्रास रीजन, एंड दिस वॉज इंट्रोड्यूस बाय थॉमस मुनरो। थॉमस मुनरो एंड रीड। थॉमस मुनरो एंड रीड, दो लोग थे, मुनरो एंड रीड। एक था मुनरो, एक था रीड। इधर था लॉर्ड कॉर्नवालिस। और इसके बाद ये वाला रीजन था महलवाड़ी सिस्टम। महलवाड़ी सिस्टम, महलवाड़ी मतलब होता है, महल मीन्स विलेज। तो इसमें जो टैक्स था पूरा विलेज इकट्ठे देता था। विलेज का जो हेडमैन होता था, जो आपका जैसा होता है प्रधान, तो विलेज का जो हेडमैन होता था वो आ जाके सीधा टैक्स देता था। दैट वाज कॉल्ड एज महलवाड़ी सिस्टम। दिस वाज इंप्लीमेंटेड इन पंजाब, दिस वाज इन बॉम्बे एंड मद्रास, एंड दिस वाज इन द बंगाल रीजन, राइट। तो आपसे पूछ रहा है रेवतवारी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस बाय, रेवतवारी तो नीचे लगा, रेवतवारी वाज इंट्रोड्यूस बाय थॉमस मुनरो एंड रीड, राइट, मुनरो एंड रीड। चलो, Mohandas Karamchand Gandhi returned to India in the year dash after 2 decades of residence abroad. So Mohandas Karamchand Gandhi was born in India, then he ultimately went to England, and then after England he went to South Africa. So South Africa से India आए थे, and it was on 15th 9th of January. It was on 9th of January. It was on 9th of January. It was on 9th of January 1915 that Gandhi returned to India. That is why 9th January is every year celebrated as Pravasi Bharatiya Divas by Ministry of External Affairs. Important question है। प्रवासी भारतीय दिवस हम उन इंडियंस की रिस्पेक्ट करते हैं जो इंडिया से माइग्रेट कर गए, बिकॉज वो हमें रेमिटेंस भेजते हैं, बाहर से हमें पैसे कमा के भेजते हैं, और इंडिया के पास सबसे ज़्यादा रेमिटेंस आता है। ये कौन बोलता है? वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट बोलती है। वेरी इंपॉर्टेंट। प्रवासी भारतीय दिवस इज सेलिब्रेटेड एवरी सेकंड ईयर, तो बाइनियल है, 2 साल में एक बार होता है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर कराती है, 9 जनवरी 1915 को कराती है। 9 जनवरी को कराती है क्योंकि 9 जनवरी 1915 को गांधी रिटर्न टू इंडिया, गांधी केम बैक टू इंडिया। गांधी किसके कहने पर इंडिया आए थे? इट वॉज जी के गोखले, जी के गोखले। दैट इज वाई जी के गोखले इज ऑल्सो कॉल्ड एज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ गांधी, द पॉलिटिकल गुरु ऑफ गांधी। एक एक चीज़ में क्वेश्चन है, आपको खुद समझ में आ रहा होगा। प्लीज़ इसको बहुत ध्यान से पढ़ा करो, अपने खुद के नोट्स बनाया करो, मैं जो बोलता हूँ उसको लिखा करो। मैं तुम्हें ऑनेस्टली बता रहा हूँ, इतने सारे क्वेश्चंस कर लोगे ना, स्टैटिक जीके के लिए कुछ अलग से पढ़ना नहीं पड़ेगा। चलो, नेम द फर्स्ट इंडियन टू बिकम अ मेंबर ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट। देखो, ब्रिटिश द पार्लियामेंट्री सिस्टम, इंडियाज पार्लियामेंट्री सिस्टम हैज़ बीन टेकन फ्रॉम ब्रिटेन। तो ब्रिटेन के पार्लियामेंट में हाउस ऑफ कॉमन होता है और हाउस ऑफ लॉर्ड होता है। इंडिया में हाउस ऑफ लॉर्ड की जगह होता है राज्यसभा, हाउस ऑफ कॉमन की जगह होता है लोकसभा। ये जो दादा भाई नेहरू जी थे, ये लिबरल पार्टी से चुनाव जीत गए थे। किससे? लिबरल पार्टी। वहाँ पे 2 पार्टीज हैं, कंजर्वेटिव और लिबरल। तो लिबरल पार्टी से ये इलेक्शन जीत गए, और इलेक्शन जीत के कहाँ पहुंच गए? हाउस ऑफ कॉमन, हाउस ऑफ कॉमन, वहाँ की लोकसभा। अच्छा, ये कांग्रेस के सेशंस के भी 3 बार प्रेसिडेंट रहे, राइट। इन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी भी दी कि कैसे ब्रिटिशर्स इंडिया से पैसे ले जा रहे हैं, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। फिर इसके बाद ही वॉज कॉल्ड एज द ओल्ड ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ही वॉज अ पारसी। एक तो इन्होंने ग्रुप बनाया था रहनुमाई खुदगतकार, याद नहीं करना, बहुत ज़्यादा हो जाएगा।
बट ये याद रखो, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया याद रखो, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी याद रखो, लिबरल पार्टी से गए थे, हाउस ऑफ कॉमन्स में याद रखो, 3 बार ही वॉज अ नेशनल इंडियन नेशनल कांग्रेस का चेयरमैन, है ना। और दादा भाई नेहरू जी की चीज़ याद रखोगे कि एक इनकी बुक थी, पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये भी याद रखेंगे। चलो, द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया जनगण मन वाज संग एट द डैश सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो इसको याद रखोगे। कैलकाटा सेशन था, होगा इसका आंसर होगा कैलकाटा सेशन। क्यों होगा? देखो 1911 में आंसर होगा कैलकाटा सेशन। क्यों? 1911 में किंग जॉर्ज 5 इंडिया आए थे, किंग जॉर्ज 5 इंडिया आए थे, और उनके सम्मान में हमने जयपुर को किया था, राइट। हमने जनगण मन लिखा था, किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था, राइट। इसके अलावा ही शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली, तो इट वाज इन द कैलकाटा सेशन, इट वाज इन द कैलकाटा सेशन दैट जनगण मन वाज प्लेड फॉर द फर्स्ट टाइम। अच्छा, जनगण मन जो होता है हमारा नेशनल एंथम है, ये कितने सेकंड्स चलता है? 52 सेकंड, और इसका शॉर्टर फॉर्मेट चलता है 20 सेकंड्स। जनगण मन वाज रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर। योर आंसर वुड बी कैलकाटा, योर आंसर वुड बी कैलकाटा। So that is it. I hope you've been watching these videos. If you haven't, if you're watching it for the first time, I would request you to go through the playlist, start watching it from lecture number 1. And I'm promising you no question in your CVT examination of the static or the GK part goes out of this. And start preparing for it in case you want any such lecture series which is going to be helpful, which you might think is going to be helpful for your examination. You should comment, right? And if you've been liking these videos, do like, share, and subscribe, and share it to the people who might need this. Also, so if you're looking for a full-fledged course to prepare for CUET, whether be it offline or online, you should give us a call on the number which I'm writing right now, and it's available in the description box also. But if you want if you have any query related to the course admission, you can give us a call on 880-8888-415 from 10 to 7:30 in the evening, right? Also give us a WhatsApp on this. WhatsApp or phone. Hello. For now, thank you so much. I hope you enjoyed the session. I'll see you on Friday now. Thank you.